Hello guys, how are you? In the last video, we had discussed about the introduction of cell and cell theory. But we had left some part of NCERT. So let's discuss that part first and then we are going to start prokaryotic cell. This is the paragraph from NCERT we had left. Different shape of the cell. Cells differ greatly in shape, size and activities. For example, mycoplasma. Mycoplasma, the smallest cell. It is the previous year question. Mycoplasma is also known as PPLO, pleuropneumonia-like organism. Pleuropneumonia like organism. माइकोप्लाज्मा मोनेरा में आते हैं, बैक्टीरिया भी मोनेरा में आते हैं, और बैक्टीरिया के पास क्या होती है? एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल, जो माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होती. So cell wall is absent in the mycoplasma. Okay. Smallest cell are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. This is the data you should remember. Among multicellular organisms, human red blood cells are 7 micrometer in diameter. Nerve cells are the longest cell, and cells also vary greatly in their shape. They may be like disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. This is the diagram from the NCERT. Red blood cells are biconcave and round. White blood cell amoeboid cells. अमीबॉइड क्यों है? ये अपनी शेप चेंज करते रहते हैं. That's why these are called as amoeboid cells. Columnar epithelial cells intestine में होती हैं. Nerve cells branched and long. Tracheate long, elongated. Mesophyll cells round and oval. These are found in the plants. ये plants में होती हैं. Okay. Then come to the part of today's video. Prokaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स हमें पता है मोनेरा में होती है. हमें पता है मोनेरा में होती है. अब इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ. ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम दिया गया है. एल्गी दूसरे हैं, ये एल्गी नहीं है, जस्ट फॉर इनका फंक्शन जो है वो सेम है, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी. Some basic shapes of the bacteria like bacillus. Bacillus is rod shape. For example, Bacillus anthracis. Okay. Then next is coccus. Coccus is spherical shape like this. When the coccus are in a linear form, these are known as streptococcus. जब स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ से समझो, जब ये स्ट्रिप्स की तरह होते हैं, स्ट्रिप होती है लंबी लंबी, स्ट्रिप्स की तरह होती है तो स्ट्रेप्टोकोकस. और these are arranged like this.
then they are Staphylococcus. Okay. Vibrio, comma shaped. Comma shaped. For example, Vibrio cholera. Spiralum, spiral shaped. नाम से ही पता चल रहा है. Like that. Then come to the structure of a prokaryotic cell. बड़ा सा पेज ले लेना अपनी कॉपी का, क्योंकि एक पेज पे ये आएगा नहीं, तो आप कॉपी को पलट के दूसरी साइड करके आप बना सकते हो. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कलर चेंज कर लेते हैं हम पेन का. दिस इज द सेल वॉल. क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है वो जनरली सेम होता है सब में. तो हम ये बैक्टीरिया का जो है स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. बैक्टीरिया की जो सेल है वो डिस्कस करेंगे. बाकी सब में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं. दिस इज द सेल वॉल. इसमें एक थर्ड लेयर भी प्रेजेंट होती है. कलर चेंज कर लेते हैं. वाइट. दिस इज नोन एज glycocalyx. So cell wall are made up of peptidoglycan. Plasma membrane is a phospholipid bilayer. अब बारी आती है glycocalyx. Glycocalyx are made up of lipopolysaccharide. Glycocalyx are of two types, hard and smooth. When it is hard, they will be known as capsule. When they are smooth, we called as slime layer. Okay. Then come to the genetic material. Genetic material, we know that circular double-stranded DNA. Circular double-stranded DNA. हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं. हिस्टोन प्रोटीन करते क्या है? ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं. दे हेल्प इन द पैकेजिंग. पैकेजिंग में हेल्प करते हैं. और दिस इज द नेक्ड डीएनए. नेक्ड क्यों है? क्योंकि कोई एनवेलप नहीं है, न्यूक्लियस में नहीं है, ये सीधे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. बट दिस इज द एरिया इज नोन एज न्यूक्लियोइड. Also genophore, also known as prochromosome. Then mRNA. mRNA कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में. अब mRNA आया कहाँ से? डीएनए से आया.
आरएनए जो डीएनए आरएनए है वो कहाँ से बनता है? डीएनए से बनता है। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। दिस इज द सेंट्रल डोग्मा। जस्ट हैव अ वर्ड, central dogma. DNA to RNA to protein. DNA to DNA is known as replication. The process when DNA form RNA is known as transcription. And RNA form the protein by the translation. So, जब DNA से RNA बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ये यहाँ से आया, DNA से आया ये। कलर चेंज कर, अब इसमें ऑर्गेनेलीज नहीं होते तो क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। 2 सब यूनिट्स होती हैं, 50S प्लस 30S। ये 80S नहीं हो गया, ये 50S प्लस 30S इज 70S। ये किस बेसिस पे है? मास और डेंसिटी के बेस पे ये दिया गया है। So ribosomes are present in the cytoplasm and also present on the mRNA. When number of ribosomes are present on a single mRNA, these are known as polysomes or polyribosomes. Okay. Then come to the next point. Color change कर लेते हैं. The most important, plasmid. Plasmid. Plasmid यहाँ डिस्कस करेंगे. प्लाज्मिड क्या है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये हमारे जो जेनेटिक मटेरियल होता है उससे अलग होता है, दैट्स व्हाई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंट क्यों होता है? अभी है क्या? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके पास क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है। इसलिए जब भी हम कोई ऐसा बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है और डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर उसके अंदर दिस टाइप ऑफ प्लाज्मिड है जो जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो वो बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, बैक्टीरिया को हम किल नहीं कर पाएंगे उस एंटीबायोटिक से। मान लिया टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो जब भी आप टेट्रासाइक्लिन लोगे या बैक्टीरिया को दोगे तो वो किल नहीं होगा, बिकॉज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है उसके पास। अब बायोटेक ने प्लाज्मिड का बहुत अच्छे से यूज किया है। बायोटेक ने क्या किया, जैसे बैक्टीरिया है, ये इसमें प्लाज्मिड है, इन्होंने प्लाज्मिड को यहाँ से निकाला, इसमें अपनी मर्जी से कोई भी जीन इंसर्ट कराया, लाइक इंसुलिन जीन। हमें पता है इंसुलिन कहाँ यूज होता है? डायबिटिक पेशेंट्स में। तो इंसुलिन जीन को हमने यहाँ इंसर्ट करा दिया, ये पार्ट को काट दिया, इंसुलिन जीन को इंसर्ट कराया, एंड देन
इसे फिर से बैक्टीरिया में डाल दिया, उसी में डालो या डिफरेंट में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करेगा। और जो इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन रेट होता है, वो बहुत हाई होता है ह्यूमन से। सो ये नंबर ऑफ इंसुलिन बना देगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इंसुलिन प्रोटीन। देन बैक्टीरिया को क्रश करो एंड दिस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करो, इंसुलिन प्रोटीन, और यहीं से हम इंसुलिन के इंजेक्शंस प्रिपेयर करते हैं। So biotech is very important. Next point is mesosomes. अब mesosomes को कहाँ बनाए भाई? पेन, ग्रीन पेन यूज करते हैं। मीसोसोम क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी एक एक्सटेंशन है मीसोसोम, यहाँ होता है। यहाँ हम लिख देते हैं, एक्सप्लेन हम दूसरी स्लाइड पे करेंगे। मीसोसोम formed by the extension of plasma membrane. 3 types of mesosomes होते हैं। वेसिकल्स कैसे होते हैं? ऐसे। ट्यूब्यूल्स, lamellae, these are tube-like structures. Okay. Then, what are the functions of the mesosome? They are help in the formation of cell wall, DNA replication, reproduction, respiration, secretion process, and the final is surface, increase the surface area of plasma membrane. अब जैसे ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, अब इसमें मीसोसोम नहीं है, जैसे ही मीसोसोम आएगा, मीसोसोम, अब ये एरिया जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बढ़ गया, तो इसी को हम बोलेंगे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? क्रोमेटोफोर्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ही होते हैं, ऐसे यहाँ, ये है क्रोमेटोफोर्स। Other membranous extension into the cytoplasm which contain pigments. Pigments होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करना है तो इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स, क्रोमो से ही पता चल रहा है, लाइट कलर। देन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बट दिस इज द पैराग्राफ फ्रॉम द एनसीईआरटी, सो रीड कर लेते हैं। इन प्रोकैरियोट्स ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. They are about 5 nanometer by 20 nanometer in size and are made up of 2 units. साइज और डेंसिटी के हिसाब से प्रोकैरियोट जो S है, दिस इज द S is the sediment coefficient. Sediment coefficient to measure size and density. दो सब यूनिट्स है 50s एंड 30s, और जो यूकैरियोट्स में होते हैं वो 80s होता है, उसमें सब यूनिट होती है 60s एंड 40s। When present together to form 70s prokaryotic ribosome. Ribosomes are the site of protein synthesis. Protein synthesis करते हैं। Ribosomes किससे बने होते हैं? rRNA plus protein. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called the polyribosome and polysomes. ये हम पढ़ चुके हैं। The ribosomes of a polysome translate mRNA into the proteins. mRNA to proteins की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इंक्लूजन बॉडीज। अब इंक्लूजन बॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी फॉर्म होती है। अब इसमें हम इंक्लूजन बॉडीज और डाल देते हैं। कौन से कलर की डालें? येलो कलर से डाल देते हैं।
These are the inclusion bodies. Come to the point. Inclusion bodies, reserve material in the prokaryotic cells, are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. ये रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करके रखते हैं, कुछ ग्रेन्यूल स्टोर करके रखते हैं. These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. For example, phosphate granules, synophysin granules, glycogen granules. Then bacterial cell. Bacterial cell may be motile, non-motile. If motile, they have thin filamentous extension from their cell wall called the flagella. अगर वो मोटाइल है तो उनके पास क्या होगा? फ्लैजिला. अब फ्लैजिला वहां पे तो नहीं बना सकते, वो बहुत खराब हो जाएगा. यहाँ पे हम फ्लैजिला बना लेते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे कलर चेंज हो गया है, बट इट्स ओके, चेंज ही कर लेते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा. कर लेते हैं. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देन येलो से सेल वॉल, व्हाइट से ग्लाइकोकेलिक्स. Bacteria show a range in the number and arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of 3 parts: filament, hook and basal body. अब इसके पास क्या है? 3 parts हैं. ये क्या है? Basal body, hook and this is filament. Filament, hook. अब basal body ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकेलिक्स. बेसल बॉडी में कुछ प्लेट्स होती हैं यहाँ पे in the plasma membrane. Then second plate is between the cell wall and plasma membrane. Third plate is in the cell wall and then between the glycocalyx and cell wall. These are the plates of basal body: L, P, S and M. These are the names of this plate. The filament is the longest portion and extend from the cell surface to the outside. तो जो मोटाइल होते हैं, जो मोटाइल बैक्टीरिया है, उनके पास फ्लैजिला है. फ्लैजिला के 3 पार्ट्स हैं: बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट. बेसल बॉडी में 4 प्लेट्स होती हैं, एल, पी, एस, एम. तो ये सब याद रखना है. मेनली ये लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन में हेल्प करता है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Villi and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play a role in the motility. ये motility में कोई रोल नहीं होता इनका. पेन चेंज कर लो. The villi are elongated tubular structure made up of special protein. The fimbriae are the small bristle-like fibers sprouting out of the cell. अब ये अगर villi है तो लेस इन नंबर होगी, इनका नंबर लेस होगा. फिम्ब्री है तो मोर इन नंबर. यही बताया इसमें. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rock in stream and also to the host tissue. तो ये अटैचमेंट में हेल्प करती है. इनका मेन फंक्शन क्या है? अटैचमेंट. ओके. दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. And the last topic of this lecture is gram positive bacteria and gram negative bacteria. एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रिस्टिन ग्राम, उन्होंने क्या दिया? बैक्टीरिया को
दो सेल्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम कैसे पहचानेंगे? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस दिया, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग, इसके 4 to 5 स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वाल। जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वाल होती है वो बहुत थिक होती है। ओके, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ग्लाइकन। और जो ग्राम नेगेटिव है उसकी जो सेल वाल होती है वो थिन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वाल, देन क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो किस में प्रेजेंट होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। इसके पास क्या है? लिपोपॉलीसेकेराइड। अब ग्राम स्टेनिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमें उसके लिए क्या चाहिए? बैक्टीरिया चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए। ग्लास स्लाइड पे पुट अ ड्रॉप ऑफ बैक्टीरिया, then step one is step one is bacterial culture smear. We put a drop of bacterial culture on the glass slide, and step two is put some crystal violet on the bacterial culture. Then this is the area जहां पर क्रिस्टल वॉलेट एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब क्रिस्टल वॉलेट जब हम ऊपर से डालेंगे तो बैक्टीरिया में यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, और इसमें भी यहीं पे हो जाता है। उसके बाद आयोडीन डालेंगे, थर्ड स्टेप आयोडीन। आयोडीन ब्लू कलर का होता है, ब्लू। जब हम आयोडीन डालेंगे ये पूरा एरिया ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज वॉश विद द एल्कोहल। वॉश विद एल्कोहल। एल्कोहल या एसीटोन, कोई भी हो। एसीटोन जैसे नेल पेंट रिमूवर भी होता है, तो ये जैसे रिमूवर काम करता है ये भी ऐसे ही काम करेगी, ये इसको रिमूव कर देगा। बट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये यहां से वॉश आउट हो जाएगा। When you put some alcohol or acetone on the slide and wash it, all the stain comes out. But in gram-positive bacteria, because of the thickness of peptidoglycan layer, ये बाहर नहीं जा पाएगा। अब ये तो नहीं गया। फिफ्थ स्टेप है put some saffron dye, saffronin dye, पिंक कलर की होती है। तो जब हमने उस पे पिंक कलर की सैफरन डाई डाली तो ये इसका कलर कैसा था? ब्लू था। पिंक कलर ऐड हो गया इसमें, ये कैसा हो गया? पर्पल हो गया।
ये हमने वॉश आउट कर दिया था, क्या था, कलरलेस। जैसे ही पिंक सेफ्रेनिन डाई डाली, इसका कलर कैसा हो गया, पिंक। When you see the slide in the microscope, if you see purple color, it means that is the gram positive bacteria. But if you see a pink color, it means this is the gram negative bacteria. So यहाँ से हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का बैक्टीरिया डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब सम ऑफ द कैरेक्टर्स हमें पता है, यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन थिक होती है, ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन थिन होती है, इसमें ग्लाइकोकैलेक्स होता है, पॉलीसेकेराइड लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। ग्राम पॉजिटिव में ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर का होता है आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, वैसे नहीं होता, आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। ग्राम नेगेटिव में पिंक कलर दिखता है। ग्राम नेगेटिव इज मोस्ट डेंजरस bacteria because of gram negative bacteria are antibiotic resistant। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, किसकी वजह से, क्यों होते हैं एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट, बिकॉज ऑफ द लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। लिपो मीन्स लिपिड, पॉलीसेकेराइड मीन्स carbohydrate। So, this is all about the prokaryotic cell। Now let's wrap it. Please do like, subscribe and share my channel. Thank you.